Hey everyone, welcome to Spill B. Let's talk about Priyanka Chopra. And for some reason, itne waqt se you were living under the rock and someone just rescued you and you don't know who she is. So let me tell you, she is one of the most powerful and influential women who started her career in Bollywood and has worked so hard that worldwide अभी उनका नाम है. बट इतना करने के बाद भी आज भी लोग प्रियंका के एक्सेंट पे अटके पड़े हैं कि how fake her accent is and all that. Priyanka and her accent both are very famous. So just देखते हैं कि how her accent has evolved over the years. प्रियंका के first interview से लेके अभी तक की उनकी जर्नी पे glance डालते हैं. I don't think so. I think it's just because we seem to have the best of the East and the West, and we could bring out a correct blend of it. And we seem to be most confident on stage. I think it's just how the judges see you. Anybody could win. You never know till the last day. So first five you must omit because I don't even remember them. I just remember because my dad was in the army, we moved around a lot. My dad and mom were studying their PhDs because they're both doctors. Usually Indian weddings are like 1,000 people at least. We had only 200, which was mostly family because both of us have giant families. Right. What do you mean it's usually 1,000? Why wasn't it 1,000 then? Because I think we just wanted to keep it super intimate about just family. Super intimate, just 200 people. For an Indian family and an Indian wedding, for sure. That's like less. My mother was so upset with me the whole time. She was like, I need to have another party for the 150,000 people that I know. How can I not invite my jeweler? How can I not invite, like, my hairdresser? So it was a whole conversation. What? Nick and I have a 10-year age gap. Yeah. Yes. We do. And there are many 90s pop culture references he doesn't understand, and I have to explain them to him. Which is fine, because we teach each other. We teach each other things. He showed me how to use TikTok, for example. You know, and I showed him what a successful acting career looks like. After watching so many of her interviews in English, I have come to a conclusion that Priyanka has two accents for sure. एक इंडियन एक्सेंट है जो मोस्टली सबका होता है इंडिया में जब भी वो इंग्लिश में बात करते हैं, एंड एक प्रियंका का अमेरिकन एक्सेंट है. एंड ये एक्सेंट आई फील लाइक जब वो 4 साल अमेरिका गई थी पढ़ाई करने के लिए, वहां से उन्होंने पिक किया होगा. तो इज दैट अ फेक एक्सेंट? तो नहीं, इट इज नॉट. इट इज जस्ट दैट कि समझो कोई अमेरिकन इधर आके उसके एक्सेंट में फटाफट इंग्लिश बोलने लगेगा ना, तो आई एम प्रीटी श्योर काफी लोगों को उसके प्रोनाउंसिएशन की वजह से समझेगा नहीं कि व्हाट इज ही सेइंग. सिमिलरली जब हम इंडियन एक्सेंट के साथ बाहर जाके इंग्लिश बोलते हैं ना, तो वो इंग्लिश थोड़ा स्लो हो जाता है. रीजन बीइंग हम लोग एक एक वर्ड को कंप्लीटली प्रोनाउंस करते हैं. दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द एक्सेंट्स. जिस वजह से जब प्रियंका हॉलीवुड फिल्म्स करने गई थी ना, तब उनका एक ट्यूटर भी था जो उन्हें अमेरिकन एक्सेंट सीखने में मदद करता था. एंड ग्रेजुअली शी गॉट इट एंड नाउ शी कंटिन्यूज टू स्पीक इन द सेम एक्सेंट व्हेनेवर शी इज डूइंग एनी शोज इन हॉलीवुड. आई रियली थॉट कि लोगों ने अभी तक तो प्रियंका को एक्सेंट के चलते ट्रोल करना बंद कर दिया होगा. बट वो जो अभी जोनस ब्रदर्स का फैमिली रोस्ट का सीरीज आया है, उसमें प्रियंका के काफी क्लिप्स फेमस हुए हैं. एंड उस क्लिप के नीचे प्रियंका के कॉन्फिडेंस के बारे में बात करने की जगह पीपल वर कमेंटिंग लाइक कि लुक एट अ फेक एक्सेंट, कैसे शी इज ट्राइंग सो हार्ड टू फिट इन विद देम. सो जहां आप अभी मेनली रह रहे हो या शोज कर रहे हो, वहां का एक्सेंट पकड़ना डजंट मीन कि यू आर ट्राइंग टू फिट इन. इट जस्ट मीन्स दैट शी इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद दोज पीपल, विद दोज ऑडियंस. I feel like accents are very important if you want to develop confidence in the way you speak. And this is a small tip for you all. Like समझो if you wanna learn English ना, तो नो कि कौन सा accent या कौन से flow के साथ आप comfortable हो. Then stick to that no matter what others say. Like if I take my example, my school was very strict when it came to speaking in English. Like they wanted proper grammar, full stop, comma and whatnot. And that scared me. Whenever I tried expressing myself in that tone that they had set for me, I felt like a robot. I wasn't very confident in that flow. Because मुझे वैसे बात नहीं करना था. They tried imposing an accent on me which I wasn't comfortable in speaking. Then I got my current accent, which is for sure some of you may think is odd, but I know this is the tone or phase in which I am comfortable. So no matter कितने बार मेरे communication के मैम ने मुझे बोला होगा कि be more formal in your tone, I never took that thing seriously. Because हमारी education system formal English and correct English सिखाने में इतना घुस जाती है ना कि लोग English से ही डर जाते हैं. Like Britishers भी इतना emphasis नहीं करते होंगे ये सब में. I'm not saying कि बिल्कुल भी feedbacks मत लो pronunciation से related कुछ हो या vocabulary से related कुछ हो ना, I always took those feedbacks, but not when it came to my accent. So I somewhere feel प्रियंका भी इस accent के साथ काफी ज्यादा confident है, and we should respect that. And करीना कपूर ने भी उसे troll किया था for her accent, but I loved how Priyanka Chopra clapped back on her. Where you get your accent from? Where do I get my... I did not ask this question. There is a leading actress by the name of Kareena Kapoor who had this question she wanted you to answer. Right. I think it was the same place that her boyfriend gets it from.
Oh, really? ऑल्सो अगेन रिसेंटली शी वॉज इन टॉक्स बिकॉज ऑफ अ मैरिज. पता नहीं लोग इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे थे कि प्रियंका एंड निक का डिवोर्स हो गया है. काफी दोनों में झगड़ा हुआ एंड देन दे डिसाइडेड टू सेपरेट. लाइक इट वॉज सो फनी टू वॉच ऑल दिस. एंड ये सारे रूमर इसलिए स्टार्ट हुए बिकॉज प्रियंका ने जोनस सरनेम उसके यूजर नेम से हटा दिया. फनी हाउ अ स्मॉल चेंज इन योर सोशल मीडिया कैन स्टार्ट डिवोर्स रूमर्स. इवन 3 साल पहले व्हेन बोथ ऑफ देम गॉट मैरिड तब ये बोला गया कि इनका शादी ज्यादा साल नहीं चलेगा. माँ बेटी की जोड़ी लग रही है, ये टैग भी उन्हें दिया गया बिकॉज ऑफ देयर एज गैप. Apparently निक प्रियंका से 10 साल छोटे हैं. सो अभी when he is 29 years old and प्रियंका is 39 years old, तो डिवोर्स की रूमर सुन के पीपल वेर लाइक कि हमने तो बोला ही था कि इनका रिश्ता ज्यादा टाइम नहीं चलेगा. Like how mean it is to be happy on something like this. And जिन्हें भी ये लगता होगा ना that प्रियंका is so damn lucky to have Nick Jonas as her husband, so no darling. To be honest, Priyanka is far more successful than Nick is. No hate towards Nick Jonas, but the point here is कि both of them are equally famous. अगर निक यूएस में काफी फेमस है तो प्रियंका की पॉपुलैरिटी इंडिया में नेक्स्ट लेवल है. ऊपर से शी इज मिस वर्ल्ड 2000 एंड ऐसे पैजेंट्स में ब्यूटी के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी टेस्ट होता है. तो टू विन सच अ पैजेंट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट. एंड अभी ही नहीं बट बिफोर मैरिज ऑल्सो प्रियंका's लव लाइफ हैज बीन टॉक ऑफ द टाउन. उनके 2 अफेयर्स काफी कॉन्ट्रोवर्शियल रहे हैं. एक उनका शाहिद कपूर के साथ जो रिश्ता था ना दैट कॉट बॉलीवुड बाय सरप्राइज. क्योंकि तब क्या हुआ था कि नो वन न्यू दैट बोथ ऑफ देम आर डेटिंग. एंड प्रियंका के घर पे एक बार आईटी डिपार्टमेंट अचानक से पहुंच गई थी एंड उस वक्त शाहिद ने डोर आंसर किया था. उसके बाद एवरीवन गॉट टू नो दैट दोनों डेट कर रहे हैं एंड इवन शाहिद ने बाद में कंफर्म किया. सो दिस रिलेशन वाज क्यूट दो बट नॉट कंट्रोवर्शियल. पर प्रियंका का इवन नाम बॉलीवुड में अक्षय कुमार के साथ भी जोड़ा गया. दोनों ने साथ में कई फिल्म्स किए थे एंड ये जोड़ी काफी हिट भी रही है. बट देन इट वाज सेड कि अक्षय हैड एन अफेयर विद प्रियंका चोपड़ा एंड ये सुन के ट्विंकल खन्ना ने जिस तरह रिएक्ट किया ना उससे एक कन्फर्मेशन जैसा मिल गया कि एक्चुअल में सच है. क्योंकि ट्विंकल ने इसके बाद अक्षय को ना कोई भी प्रियंका के साथ फिल्म करने नहीं दिया. वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम शायद दोनों की लास्ट फिल्म साथ में थी. एंड सेम इवेंट शाहरुख खान के साथ भी हुआ. लाइक प्रियंका एंड एसआरके का नाम भी जोड़ा गया जिसके बाद गौरी खान डिड नॉट अलाउ एसआरके टू डू एनी फिल्म्स विद प्रियंका चोपड़ा. अभी भी इफ यू सी ना एसआरके का नाम जब जब इंटरव्यूअर्स लेते हैं तो प्रियंका गेट्स अ बिट इरिटेटेड बिकॉज शी ट्राइज टू स्टे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम एसआरके का इशू. आने में ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी. नहीं मैं शूटिंग कर रही थी. आप शूटिंग कर रहे थे. शूटिंग कर रहे थे आप. तो इससे पहले लेट सबसे ज्यादा इवेंट्स में आते थे शाहरुख खान. और आप चाहते हैं कि मैं नाम लूं ना? नहीं या आप चाहते हैं कि मैं जवाब दूं या आप चाहते हैं कि कोई तमाशा बने? नहीं बिल्कुल नहीं. बट या इफ एनी ऑफ दिस अक्षय या एसआरके का रूमर इज ट्रू देन दैट इज रॉन्ग. क्योंकि दोनों भी मैरिड थे एंड उन स्टार्स के वाइफ के साथ गलत करने जैसा ही हो गया. एंड इवन इस सिनेरियो में एसआरके एंड अक्षय की वाइफ ने भी गलत किया. व्हाई टू हेट ओनली ऑन प्रियंका? इवन देयर हस्बैंड्स वेर एट फॉल्ट ना. बिकॉज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में 2 लोगों ने चीट किया होता है. एक जो ऑलरेडी मैरिड है एंड दूसरा पर्सन जो ये मालूम होने के बावजूद उस पर्सन के साथ रिलेशन में है. सो या वो जो टाइम था ना उस वक्त पे इन अ वे बॉयकॉट का सिनेरियो हो गया था प्रियंका के साथ. क्योंकि अक्षय एंड एसआरके दोनों के साथ वो फिल्म्स नहीं कर सकती थी. Imagine getting targeted by wives of such influential Bollywood stars. And Fabulous Lives of Bollywood Wives ये सीरीज देखने के बाद we all have understood कि कैसे ये Bollywood wives का एक सर्कल होता है. तो ऑलमोस्ट सारे मैरिड एक्टर्स की कॉशनरी लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा आ चुकी थी. After this it was hard for her to get any films. So 2006 से 2008 ये 2 साल ऐसे थे जहाँ it was a rough phase for her. But then फैशन मूवी उन्हें मिला which was the film जिसने पूरे सिनेरियो को चेंज किया. क्योंकि ये फिल्म किसी मेल एक्टर की वजह से नहीं चली. ये फिल्म प्योरली उसके स्टोरी लाइन की वजह से चली. उसके बीच में ऋतिक रोशन के साथ उन्होंने क्रिश भी किया एंड क्रिश भी एक ऐसा फिल्म था विच हेल्प्ड हर स्टे इन बॉलीवुड. एंड देन शी डिड फिल्म्स लाइक दोस्ताना, जॉन एंड अभिषेक के साथ. एंड ऐसे फिल्म्स करने की वजह से शी स्टूड आउट बिकॉज इससे समझ आया कि प्रियंका को मेल एक्टर्स की जरूरत नहीं है फिल्म चलाने के लिए. एंड कई साल बाद फिर एसआरके ने प्रियंका के साथ काम किया डॉन 2 के लिए. क्योंकि तभी प्रियंका ना काफी डिमांड में थी. लोग उन्हें उनकी फिल्म के लिए साइन करना चाहते थे. इट वॉज लाइक प्रियंका ने खुद के दम पे इतना फेम हासिल कर लिया था कि साइनिंग हर फॉर एनी फिल्म वॉज अ बिग थिंग. क्योंकि वो सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बट हॉलीवुड में भी अपना करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही थी. सो प्रियंका का डेट्स मिलना वॉजंट सो ईजी. मेनली वो म्यूजिक वीडियो नहीं था कि इन माई सिटी वाला. वो म्यूजिक वीडियो के चलते प्रियंका का फैन बेस अब्रॉड में भी बढ़ा एंड पिटबुल के साथ भी उन्होंने फिर एक गाना बनाया. एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो टर्निंग बैक. शी गॉट कास्टेड इन फिल्म्स लाइक बेवॉच. देन क्वांटिको जो एक अमेरिकन टीवी सीरीज था उसमें भी शी वाज कास्टेड. तो या शी हैज कम अ लॉन्ग वे. 18 years की एज से शी स्टार्टेड वर्किंग एंड शी हैज अचीव्ड अ लॉट. तो नाउ ट्रोलिंग हर फॉर मैरिंग समवन यंगर एंड कूल बिकॉज लड़का लड़की से 10 साल बड़ा हुआ तो नो वन हैज एनी इश्यूज. इफ मेन गेट सक्सेसफुल एट द एज ऑफ 30 or 35 years एंड इज स्टिल सिंगल तो बोला जाता है कि उतना तो वक्त लगता ही है सेटल होने में. एंड वही अगर इफ अ वुमन इज 30 or 35 years old सक्सेसफुल बट सिंगल देन बोला जाता है कि अरे शादी के लिए लेट हो गया. उनके अचीवमेंट्स को साइडलाइन ही कर दिया जाता है. एंड दिस रियली स्केयर्स मी अ लॉट बीइंग अ वुमन कि व्हाई आर वी बाउंड टू बी मैरिड एट अ सर्टेन एज.
I know थोड़ा serious हो गया इधर, so let's lighten up the topic. Apart from her accent and her marriage and her films, she is also very famous for her fashionable clothes. If you see, she has amazing style. But हर person की तरह at times goof ups उसके साथ भी होते हैं. I won't lie, but some of her looks are really funny. Met Gala में जब प्रियंका has entered, उन पे memes बने ही बने हैं. And at times memes are funny. Even प्रियंका Met Gala का जो memes उनका बनता है ना, उसको share करती है. And I never understood this specific look of hers. ये पता नहीं कौन से occasion का था, but देख के it seems like कोई तो magazine photoshoot के लिए लिया होगा. Because that outfit is really weird. जब वो ज़्यादा ही experiments करती है ना उसके look के साथ, तभी it goes wrong. वरना she has a very classy style. And her signature look ना seems effortless also. Even one thing that I've learned from her is the way you carry yourself. That really matters. If you portray yourself with confidence, people are gonna fall for you. Like how you cannot love a person who is so confident. यहाँ हम तो college के presentation में ही डर जाते हैं, and there she is standing on such a big platform and speaking fluently. Still लोगों को just उसके accent की पड़ी है. So yeah, that's it. Do let me know आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो भी divorce thing या accent thing is going around उसके बारे में. And if you want, you can follow us on Instagram. और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. Thank you.